ہر سال کے طریقے سے سال کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ آج ہندوستان کے اس آئین کو 77واں سال ہو گیا ہے۔ آج اس 77واں گنتن دیوس کے موقع پر مسلم فنڈ کے سرپرست جناب اعجاز اللہ خان صاحب، منشی جی سیکرٹری مسلم فنڈ، زبیر بھائی، شپن جنیدی صاحب، انیس قریشی صاحب، توفیق ملک صاحب، راشد ایڈوکیٹ صاحب، محبوب صاحب، مفتی شاہد صاحب، سرفراز صاحب، پترکار بھائی دلشاد علی صاحب، علی نواز خان صاحب، سبھی سامنے بیٹھے ہوئے میرے معزز حاضرین، سبھی مسلم فنڈ کے ہمارے محنتی، ایماندار، دیانتدار اسٹاف، خوبصورتی سے سنچالن کر رہے ہیں مسلم فنڈ کے جی ایم عقیل صاحب، سبھی کو میری جانب سے گنتن دیوس کی بہت بہت مبارکباد۔ مبارکباد کے مستحق بھی آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ بھارت کے آئین کی عزت کی ہے، ہمیشہ اس کا سمان کیا ہے، کیونکہ جو قربانی سن 1947 میں ملی تھی وہ آپ کے بزرگوں کی قربانی کی بدولت تھی کہ ہندوستان کے ایک ایک بزرگ نے ہمیں آزادی میں سانس لینے کے لیے اس بھارت دیش کو انگریزوں سے آزاد کرایا، اور اس کو آزاد کرانے کے بعد ہمارے بزرگوں نے، کیونکہ ہندوستان کسی ایک بھی انسان کا مطلب بھارت میں رہ رہے تھے، الگ الگ زبانیں تھی، الگ الگ ذاتیں تھی، الگ الگ دھرم تھے، الگ برادری تھی، ان سب کو اکٹھے کرنے کا کام ہندوستان کے اس آئین نے کیا۔ اس آئین کی بدولت آج 77 سال ہو چکے ہیں، جس کی بدولت آج ہندوستان کے اندر ہم گزار رہے ہیں، لیکن وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، سرکاریں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، لیکن ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ نوجوان، ہمیشہ بزرگوں نے جو یہ سنویدھان بنایا اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ نوجوان آگے بڑھ چڑھ کر اس کی حفاظت کے لیے آگے کام کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کام ایسے نہیں ہوتا، سبھی نے کہا تعلیم تعلیم تعلیم، اور دیکھیں تعلیم پہ ہمیشہ آج سے نہیں، ہماری تو اسلام کی پہچان ہی ایک طرح سے ہوئی ہے۔ ہم اس بات کو سب جانتے ہیں کہ پیارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سب سے پہلے اقرا پڑھو، اس کے بعد ہم اسی چیز سے سمجھدار ہوتے ہیں، اور آپ نے پھر ایک بات کہی کہ جدید تعلیم کے لیے اگر آپ چین بھی جانا پڑے تو آپ کو چین جانا پڑے گا، سعودی عرب کہاں ہے، چین کہاں ہے، اس کے بعد آپ نے حکم دیا۔ لیکن ہم لوگ اس سے دور ہیں، حالانکہ آج کا جو ریشو ہے الحمدللہ مجھے یہ بھی بتانے میں بہت خوشی ہے کہ جتنا اس سرکار نے ہم لوگوں پہ سختی کری ہے اتنی ہمارے نوجوانوں نے تعلیم کی طرف دھیان دیا، اور ہمارا آج کے وقت میں جو ایجوکیشن کا ریشو ہے وہ بہت اوپر جانے کا کام ہے، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہیں، اور اس کوتاہی کی سزا تو ہمیں ملی، جیسے کہ SIR کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو پریشان کیا گیا، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں اچھائی ڈھونڈ لینی چاہیے۔ جینے کے لیے جو ہے ایک راستہ ڈھونڈتے نا، سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی، کہتے نا، تو اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی کہ آپ لوگوں کے کاغذ جو خراب تھے سرکار نے صحیح کرا دیے، اس کی لاپرواہی، کیونکہ چاہے یہ والی سرکار رہی ہو یا اس سے پرانی والی سرکار رہی ہو، اس سے پرانی سرکار رہی ہو، اس نے ہمیشہ ووٹ بنوائے۔ اب نیتاؤں نے، شہر کے جاگرک لوگوں نے، سب نے کہا کہ ووٹ بنواؤ، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ سے کون سرکار بننے کی رہی ہے، لوگوں نے کبھی ووٹ نہیں بنوائے، لیکن سرکار نے
वोट भी बनवा दिए, कागज भी सही करा दिए, वरना कभी भी लोगों ने परवाह नहीं की। ये तालीम की कमी थी। अगर तालीम होती तो अपने कागजात को इंसान सही से रखता। लेकिन शुक्र है क्योंकि अल्लाह ने कहा भी है कि भाई मैं तो ऐसे लोगों से काम करवा दूंगा जिनसे तुमने सोचा भी नहीं होने का। तो हमें कोई बुराई नहीं है उन लोगों की, हमें तो ये बेहतर है कि उन्होंने हमें जीने का तरीका सिखा दिया जो हम जी नहीं रहे थे, कि जैसे सब भागे चलते हम भागे चले जा रहे हैं। वजह थी तालीम का ना होना। लेकिन जिन लोगों के पास तालीम है, मैं उनसे कहूंगा कि आपके लिए हुक्म है, पढ़ो और पढ़ाओ। आपकी ड्यूटी पढ़ने से खत्म नहीं हो जाती, आपकी ड्यूटी शुरू होती है पढ़ो और पढ़ाओ। जो लोग नहीं पढ़े उन्हें पढ़ाओ। तो मुस्लिम फंड किरतपुर की इस कमेटी को, सामने बैठे हुए सभी मेरे मुस्लिम फंड के स्टाफ, सभी यहाँ मौजूद हाजिरीन, मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सन 1970 में मुस्लिम फंड की संख्या बुनियाद रखी गई थी, वो इसी सोच के ऊपर रखी गई थी कि इससे जो मुनाफा होगा हम तालीम का खर्चा करने का काम करेंगे। और मौजूदा कमेटी ने हमारे साथियों ने, बुजुर्गों ने, मरहूमी जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको खिलाज अकीदत पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का जो पेड़ 50 साल पहले आपने लगाया था, आज वो तालीम आपके शहर में तालीम नहीं दे रहा, जहां जहां आपकी ब्रांच है वहां भी तालीम की रोशनी फैलाने का काम मुस्लिम फंड किरतपुर कर रहा है। और आप लोग इस बात के मुबारकबाद। ये किसी एक का काम नहीं है कि साइन करा जाएगा उसने ये इदारा बना, बिल्कुल नहीं। ये मेरे बुजुर्गों की देन है, ये मेरे उन बुजुर्गों की देन है जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उसमें चाहे वो पदाधिकारी रहे हो, चाहे उस वक्त के जिम्मेदार जो भी मेंबर थे वो रहे हो, या उस वक्त के वो खातेदार रहे हो जिन्होंने मुस्लिम फंड किरतपुर को यकीन किया, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप और हम एक चौकीदार की हैसियत से उस तंजीम को चलाने का काम कर रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग हमारे हाथ में दे के गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सामने बैठे हुए मेरे कर्मचारी हैं, नौजवान बच्चे हैं, हंसने का दौर नहीं है, बहुत बुरा दौर है। इस दौर में आपको इत्तेफाक और इत्तेहाद हमेशा रखना पड़ेगा। अगर आप अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रखोगे तो आप यकीन जानो, बचपन में स्कूल में आपने कहानी पढ़ी होगी कि बाप ने अपने बेटों को बुलाया और 4 लकड़ी दी के तोड़ो, तो उन्होंने एक करके तोड़ दी। फिर कहा कि चारों तोड़, 4 को मिला लो फिर तोड़ो, तो वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर एक हो तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर आप अकेले रहोगे तो आपको आसानी से तोड़ दिया जाएगा। और पूरी दुनिया का आलम है, आज के वक्त में ऐसा नहीं है कि एक वक्त आप BBC लंदन सुनने का काम करते थे, आज आपके हाथ में ही मोबाइल, और ये हाथों हाथ अगर दुनिया में कहीं कोई बात होती है तो आपको मिनट से पहले मोबाइल पता चल जाता है कि दुनिया में ये चीज हुई। तो आप देख लीजिए कि आप लोगों के लिए दुनिया में कितनी मोहब्बत है, नजर आ रहा होगा आपको कि आप लोगों से दुनिया में कोई खुश नहीं है। हर कोई इस्लाम को मिटाना चाहता है, ये उनकी भूल है कि वो इस्लाम को मिटा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कभी हमारी है, क्योंकि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है, और जहाँ इत्तेहाद नहीं होता वहां दुश्मन जो है गालिब हो जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी SIR चल रहा है, SIR निपटेगा, निपटने के बाद एक चीज और आने वाली है आप लोगों के पास, वो भी सरकार के मैनिफेस्टो में है कि बहुत जल्दी आपको अपने मकान के सबूत देने पड़ेंगे, ये भी लागू होने जा रहा है। तो उनका मकसद जो है वो आप लोगों से भगाना है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, भगाने के अलावा कोई काम नहीं। क्योंकि कोई चीज आपको देनी नहीं है, कोई चीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने खुद कभी नहीं मांगा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमने सिर्फ भारत के संविधान, जो आज जिसकी हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस संविधान से हमें इतनी मोहब्बत थी कि हमने इसको यकीन किया, हमने कुछ भी नहीं मांगा सिवाय भारत के अंदर सुकून का। और ये संविधान हमें भारत में सुकून से जीने का रास्ता बताता है। ये संविधान ऐसा है कि जो भी भारत का नागरिक है वो सर्वोच्च है, और भारत के आईन की बदौलत जो है वो अपना वोट का इस्तेमाल कर सकता है, और भारत के कानून के हिसाब से हमें जीने का पूरा हक है। हर बात में हमारा पूरा हक हमें भारत के संविधान ने दिया है। तो मैं आप लोगों को, उन बुजुर्गों को की देन है कि आज हमें ये संविधान मिला। मैं आप लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
लेकिन ये समझना पड़ेगा। रिचार्ड भाई ने भी बात आई, ये एक वाकई हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि यार 26 जनवरी किस लिए है। और ये इतनी बड़ी शर्म की बात है कि जिन लोगों ने भारत की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने बच्चों की शहादत दी, वो सब बेकार कर दी, क्योंकि हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, या 15 अगस्त है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। बस हमें इतना याद है कि ईद और दिवाली, ईद और दिवाली हमारा इस्लामिक धर्म के हिसाब से है, लेकिन ये भारत के उन शहीदों की कुर्बानियों का त्योहार, को आजाद करने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए जीने को तो वो भी जी सकते थे जैसे हम जी रहे। हमारी कुर्बानी थोड़ी कि हम दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और उन्होंने अपनी पूरी जो उनकी कोशिश थी कुछ करने का काम करेगा। मौत से सबको डर लगता है, लेकिन उन्हें मौत से डर नहीं था, उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि हम अपनी नस्ल को आजादी की हवा, आजाद हिंदुस्तान को, अपनी नस्ल को आजाद देके जाए। तो हमारी भी उसी हिसाब से जिम्मेदारी है। मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, मैं सभी से हमेशा कहता हूँ, आज के दिन कहता हूँ, क्योंकि आज ही के दिन आप मुझे मिलते हैं, वैसे तो आप लोगों से मेरी बात होती नहीं, मैं यही कहूंगा कि तालीम दिलवाइए। दुनिया में तालीम से बड़ा हथियार आगे कुछ नहीं है। दस्तकारी और तालीम दोनों जब एक साथ चलेंगे तो आपके घर के अंदर रौनक होगी, आपके अंदर, आपके घर के अंदर एक पढ़ाई लिखाई से तो आपके हर चीज पूरी होगी, समझ होगी, और दस्तकारी से, पढ़ाई से, हर हुनर बच्चे के पास जब होगा तो आपके घर की तरक्की होगी, और जब घर की तरक्की होगी तो आपके घर में परेशानी होने ही नहीं इंशाल्लाह। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि तालीम ज्यादा लें, और हमेशा जो है अगर आप लोगों के अंदर इख्तिलाफ है, खास तौर पे मैं यहाँ मौजूद हाजिर हैं, मुझसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के मेरे बीच में अगर कहीं इख्तिलाफ है या आपके बीच इख्तिलाफ है तो उस इख्तिलाफ को दूर करने का काम करें, क्योंकि वक्त जो है बहुत नाजुक है। अब आप लोग अलग अलग रहोगे तो आप लोगों के बहुत बड़ा नुकसान होता रहा है और बड़ा नुकसान आने वाला है। इसी के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। बहुत मुख्तसर सी बात मैंने आपसे कही है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो इस बात को गौर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।